Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very warm welcome to all of you. Hope all of you heard my voice. Yes, sir, you're audible. Yes, sir. In last class, we have discussed how to compute the probability of type 2 error and hypothesis testing about the single mean and hypothesis testing about the mean in case of non-standard deviation, non and non-standard deviation. In case of non-standard deviation means population standard deviation, use standard normal distribution, and in case of unknown standard deviation, use the t distribution or t statistics. Okay. First, we take the query from your side, then properly or formally start the. We will formally start the lecture. Yes. Sure. Share your queries or question regarding the last topics. No, sir. Daniel, no question. यस सर, अब तक जो भी कैटर किए हैं सवाल उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट अभी जरा हायर लेवल के सवाल करेंगे तो सर कुछ आया तो जरूर। बीटा कंप्यूट किया, बीटा टाइप 2 एरर। नहीं सर, बीटा वाला सवाल नहीं किया अभी। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? प्रेजेंटेशन दी थी मैंने लास्ट क्लास में आपको। प्रेसी असेंबली जॉन मोरेल की। यस। नो सर। नो सर, आपने लास्ट जो एक नो सर दिया हुआ था वो वही नहीं करवाया था आपने, और कोई नई असाइनमेंट नहीं दी थी। टाइप 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये मैं आपके सामने बुक शेयर करता हूँ। दिस वन सेक्शन 9.7 to calculate the probability of type 2 error. ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ओसी कर्व भी डिस्कस की थी। सर इसमें कुछ लास्ट वाले एक दो टॉपिक्स रहते थे सर। हाँ, टाइम शॉर्ट था तो चैप्टर में तो दो रहते हैं, 9.6 भी रहता है, 9.8 भी रहता है। जी सर, यही बस। हाँ, मैं वो करता हूँ डिस्कस 9.6 and 8. My question is that had we completed procedure or question related to type 2 error in last class and also discuss OC curve or not? Yes. सर ये कर्व तो डिस्कस नहीं किया था। कर्व नहीं की थी डिस्कस। ओके। नहीं सर, लेकिन टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाए थे आपने। ओके, चले मैं ना आपको रिकॉल करते हैं कंप्यूटेशन। अच्छा, इससे पहले हम आते हैं सेक्शन 9.6 पे। बेसिकली 9.6 जो सेक्शन है, प्रोवाइड द बेस व्हाई वी कंप्यूट द टाइप 2 एरर। बेसिकली in any testing procedure we have possibly two types of error. First is a type 1 that wrongly rejected H naught, and second one is a type 2 that is wrongly accepted H naught, or you may be called accept H naught when it is false. Both type of error, any type of decision making associate with these two types of error. This one, section 9.6, hypothesis testing and decision making. This one is you may be called theoretical discussion about the relationship between hypothesis testing and decision making. Basically, our conclusion is based upon sample results. For example, मैं इसके third paragraph को पहले explain करता हूँ. Here, as a quality control manager,
The task of the quality, second line, the task of the quality control manager is that can decide to accept the shipment of the batteries from a supplier, one option, or return the shipment because of poor quality. Quality का criteria क्या decide किया है? Assume that the design specification required from the supplier to have a mean useful life of at least 120 hours. कि जो on the average life of the battery है should be 120, at least 120. मतलब minimum 120 हो, 120 से ज़्यादा है तो वो मतलब well and good life of the battery. If on the average, this one is not. If on the average life of the battery is at least के लिए आपने गर्दन का साइन यूज किया, at least 120 hours, this means we accept the shipment. Otherwise आप डिक्लेयर करेंगे कि ये this shipment is as a poor quality shipment. Poor quality mean कि on the average life of the जो batteries है वो 120 hours से less है. Then अगर आपका H0 रिजेक्ट होता है, मीन सैंपल डाटा H0 को सपोर्ट नहीं करता, तो देन यू मे बी कंक्लूड दैट जो शिपमेंट है, शिपमेंट इज रिजेक्टेड, मीन ऑन द एवरेज लाइफ ऑफ द बैटरी इज लेस देन 120 आवर्स. इन सच केस रिटर्न द शिपमेंट. देखें बेसिकली जस्ट 1 मिनट. अच्छा, any student explain the concept of type 1 and type 2 error in this particular, against this particular application? Yes. इस केस में कोई स्टूडेंट टाइप 1 और टाइप 2 एरर को एक्सप्लेन करेगा कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, फिर अगली डिस्कशन में करता हूँ. यस, टाइप 1 एरर क्या होगा इस केस में? देखिए ना, वी हैव पॉसिबली टू पॉसिबिलिटीज. मे बी एक्सेप्ट शिपमेंट. समझते हैं शिपमेंट का मतलब है आपके पास कंसाइनमेंट आई है, मतलब लॉट आई है जिसके अंदर बैटरीज हैं, वो जिस भी फॉर्म में होगी, किसी ट्रक में आई है लोड होके, या वैसे कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आपके पास मतलब सपोज 100 की लॉट आ गई है और आपको कहा गया कि बीइंग अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इस लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो आपको ये बताया गया कि अगर लॉट जाहिर है एक बैटरी की बेस पे, तो आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप एक सिग्निफिकेंट सैंपल लेंगे, उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये लॉट इज एक्सेप्टेड. रेंडमली सैंपल लेंगे, मतलब रेंडमली सैंपल का मतलब है रेंडमली बैटरी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनकी लाइफ को मेजर किया जाएगा. तो इफ on the average life of the batteries is at least 120 hour, means shipment is acceptable. अगर सैंपल डाटा इसको सपोर्ट करे, सारी लॉट को तो डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं होता. जहां पे भी मतलब क्वालिटी कंट्रोल का काम हो रहा होता है, क्वालिटी इवैल्यूएशन हो रही होती है, क्वालिटी को एग्जामिन किया जा रहा होता है, आप वहाँ सैंपल की बेस के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं. जैसे मतलब आप छोटी सी एग्जांपल लें, आप किसी चीज को परचेज करते हैं तो आप ये नहीं करते कि उसका हर एक यूनिट देखेंगे, आप एक सैंपल देख लेते हैं कि अगर सैंपल जो है वो आप सेटिस्फाई है सैंपल से, तो देन आप परचेज द लॉट या परचेज द एग्रीगेट. So if lot is accepted when mu is greater than or equal to 120, and if lot is rejected then mu is less than by 120. अच्छा, अब मुझे बताएं कि we have possibly two type of conclusion, maybe accept H0 or maybe reject H0. तो एरर क्या होंगे इन दोनों केसेस में, दोनों कंक्लूजन में? What are the type 1 and type 2 error in particular case? Yes. सर टाइप 1 एरर तो ये होगा ना कि हम रिजेक्ट करें H0 when it is true. Yes, ठीक है. When you reject H0 when it is true. And second type 2? टाइप 2 में सर ये होगा कि हम रिजेक्ट करेंगे सर HA को when it is true. हाँ, मतलब एक्सेप्ट करेंगे H0 को या रिजेक्ट करेंगे HA को when H0 is false या HA is true. ठीक है, ये एक ही बात है असल में. जब हम कहते हैं ना H0 is false तो इट्स मीन HA ट्रू है. जब हम कहते हैं कि रिजेक्ट HA तो इसका मतलब है एक्सेप्ट H0. मतलब ये दो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये वाइस वर्सा होती हैं.
एक स्टेटमेंट जब हम लिख रहे होते हैं तो दूसरी ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रही होती है। जब हम कह रहे हैं ना रिजेक्ट एच नॉट, इट्स मीन कि हम एच नॉट को जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा सैंपल डाटा फेवर किसको कर रहा है, एच ए को। अच्छा, अब देखिए ये दोनों टाइप के एरर एग्जिस्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग ये है कि क्या आप अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंक्लूजन की बेस पे मतलब फौरी डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, या पोस्टपोन कर देंगे अंटिल द नेक्स्ट सैंपल। क्योंकि देखिए हमारा जो रिजल्ट है ना वो सैंपल की बेस पे है। सैंपल की बेस पे जब भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर के चांसेस होंगे, क्योंकि हमने एक स्मॉल पोर्शन को स्टडी की है। अब जब आपका कंक्लूजन है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, ये एरर होगा टाइप 1। इसको आपने पहले से कंट्रोल कर लिया, दैट इज 5% और 1%। कि मीन अगर आप इस कंक्लूजन की बेस पे कि व्हेन वी रिजेक्टिंग एच नॉट की रिजेक्शन का मतलब है एच सैंपल डाटा सपोर्ट एच ए, इट्स मीन कि ऑन द एवरेज जो लाइफ है वो 120 से कम है। इट्स मीन कि सैंपल डाटा आपको ये बता रहा है कि रिटर्न द शिपमेंट, मतलब सैंपल डाटा आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस शिपमेंट क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर शिपमेंट is less than the specified standard, then return the shipment. अगर आप accept एच नॉट तो इस कंक्लूजन के दायरे जब आप शिपमेंट को वापस भेजेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ना। इस कंक्लूजन के रॉन्ग होने के 5% चांस हैं, अल्फा आपको ये बताता है। तो किसी भी कंक्लूजन के अगर रॉन्ग होने के 5% चांस हैं और उसकी करेक्ट होने के 95% चांस है तो इट इज एक्सेप्टेबल। मीन आपने टाइप 1 एरर को कंट्रोल कर लिया, ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया बाय predefining or by finding p-value. We have also discussed in last class that p-value is also type 1 error. Basic difference between p-value and type 1 error is that type 1 error is predefined, but p-value is computed from the sample data. This is the basic difference. Conceptually, p-value and type 1 error both are same. अच्छा, अब आए आप सेकंड बात पे। When we accept एच नॉट, अगर आपका कंक्लूजन ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप ये फर्दर डिसीजन ये लेंगे कि जो ये लॉट है पर्टिकुलर, दिस लॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, दैट इज ऑन द एवरेज लाइफ ऑफ ईच बैटरी इज 120 आवर्स, एटलीस्ट 120 आवर्स। तो आप लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके एक्सेप्ट करते हुए इसके फॉल्स होने के तो चांसेस है ना। दिस वन इज कॉल्ड बीटा। बीटा हमने डिटरमाइन ही नहीं किया कि जाहिर है जिस तरह मैंने अल्फा को तो बता दिया आपको कि हमने अल्फा 5% रखा है, तो पहले कंक्लूजन के रॉन्ग होने के 5% चांस है या 1% चांस है और उसके करेक्ट होने के 99 या 95% चांस है। दूसरे कंक्लूजन के एक्सेप्ट एच नॉट के रॉन्ग होने के कितने चांसेस हैं? अभी तक इस स्टेज तक 9.6 की स्टेज तक वी हैव नॉट डिटरमाइन और वी हैव नॉट कंट्रोलिंग, डिटरमाइनिंग का वर्ड कंट्रोलिंग बेटर है, कंट्रोलिंग द टाइप 2 एरर। हमने टाइप 2 एरर को कंट्रोल नहीं किया, तो दैट्स व्हाई आप अपने कंक्लूजन को पोस्टपोन कर देंगे अंटिल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। ये सारी डिस्कशन है इस सेक्शन में 9.6 में। अगर मैं इसकी आपने इसको पढ़ना है, जाहिर है ये आपको कई दफा पढ़ने के बाद समझ में आएगी सारी डिस्कशन। मैं इसकी ना जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस पढ़ता हूँ। बुक इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. देखें ये आपको ये कह रहा है कि we have possibly two type of conclusion. One is reject H naught, second one is do not reject H naught. इसको आप accept H naught नहीं कहते। इसकी रीजन क्या है? जब आप कहते हैं ना accept H naught तो इट्स मीन टाइप 2 एरर उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो हम टाइप 2 एरर से अवॉइड करते हुए एक ना अपनी साइड सेव रख के कंक्लूजन देते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट। डू नॉट रिजेक्ट मीन देखेंगे इसने यहाँ पे ना इसको मतलब एक्सप्लेन किया है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। इफ p वैल्यू इज लेस देन बाय अल्फा we made the conclusion that reject H naught and declared the result is significant. Otherwise we made the conclusion do not reject with a significant S. We control the probability of making a type 1 error जो हम पहले से फिक्स कर देते हैं अल्फा को, but not the type 2 error. इस स्टेज तक हमने टाइप 2 एरर को कहीं डिस्कस नहीं किया।
Thus we recommend the conclusion do not reject H naught rather than accept H naught. इसी वजह से हम अपना कंक्लूजन ये देते हैं कि कैन बी रिजेक्टेड और कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये नहीं कहते एक्सेप्टेड, क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ ना एरर एसोसिएट हो जाता है। जब आप कहते हैं ना डू नॉट रिजेक्ट, तो आपने उसको मतलब रिजेक्ट नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। समझ आ रही है बात? मतलब जैसे होता है ना आम लफ्जों का हेर फेर होता है कि आप अपनी साइड सेव रख के बात करते हैं हमेशा, तो ये भी हम अपना जो कंक्लूजन देते हैं डू नॉट रिजेक्ट मीन के अवर सैंपल डाटा फेल टू सपोर्ट or does not support H naught. This one, our sample data does not support H naught. ये आपका कंक्लूजन है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि we cannot या we do not reject H naught. आप ये नहीं कहते कि accept H naught, ताकि ये आगे देखें उसने इसकी रीजन लिखी है, because the later put the risk of making type 1 error of accepting H naught when it is false. With the conclusion do not reject H naught, the statistical evidence is considered inconclusive and usually an indication to postpone a decision or action until the further research or testing can be undertaken. इसीलिए जब आप मतलब ये कंक्लूजन ले रहे हैं do not reject H naught, तो you have possibly two option कि आप अपने जो मतलब फर्दर डिसीजन है उसको पोस्टपोन कर दें until the further research or testing can be undertaken. This one. सेकेंड पैराग्राफ को भी आपने पढ़ लेना है। मतलब इस जो क्रस्ट है इस 9.6 का वो ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू डिफरेंट, यू मे बी कॉल्ड कॉन्सेप्ट, आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आप करते हैं बाय कंट्रोलिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जब तक आपने टाइप 1 तो कंट्रोल कर लिया लेकिन टाइप 2 एरर को कंट्रोल नहीं किया, तब तक आप अपने एक्सेप्टेंस ऑफ H नॉट या डू नॉट रिजेक्ट ऑफ H नॉट की बेस पे डिसीजन नहीं लेंगे until मतलब इसको पोस्टपोन कर देंगे until the further research has been taken or further sample is selected from the population. अच्छा, इसके लास्ट पैराग्राफ को पढ़िए। In such decision-making situation, it is recommended that the hypothesis testing procedure be extended to control the making of type 2 error, because a decision will be made and action will be action taken. We do not reject H naught. Knowledge the probability of making type 2 error will be helpful. In section 9.7, we explain how to compute the probability of type 2 error and how the sample size can be adjusted to help the controlling the type 2 error. इसके बाद का जो 9.8 का सेक्शन है वो हम n की वैल्यू कंप्यूट करेंगे विच कंट्रोल टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। एक आपने 8.5 में n कंप्यूट किया था टू कंट्रोल मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ जो 9.8 का आज का हमारा सेक्शन है उसमें हम n कंप्यूट करेंगे सैंपल साइज जो कि कंट्रोल करेगा टाइप 1, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 एरर को प्री डिफाइन कर लेंगे और n कंट्रोल की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। और टाइप 2 एरर जो है ये तो हम पढ़ चुके हैं सारा, मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ इसके स्टेप्स। हाउ टू कंप्यूट टाइप 2 एरर, these are the 5 steps. First, formulate H naught and H1. Second one is with the help of alpha and critical value approach, determine critical region, this one. And third step is solve the critical region for, अच्छा जो critical region बनेगा ये under HA बनेगा। और टू टेल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो गिवन मीन है HA के अगेंस्ट जो मीन है वो ग्रेटर है तो आप ग्रेटर का सिंबल यूज करेंगे, और अगर वो H नॉट के मीन से लेस है तो फिर आप लेस का सिंबल यूज करेंगे, मतलब z इज लेस देन बाय माइनस जी अल्फा बाय 2। अगर वन टेल है, अपर टेल है या लोअर टेल है, तो फिर उसके बिल्कुल सेम साइन यूज होगा। मतलब अगर अपर टेल है तो क्रिटिकल रीजन ग्रेटर देन साइन के साथ विल अल्फा, और अगर लोअर टेल है तो क्रिटिकल रीजन लेस देन साइन के साथ विद अल्फा। टू टेल में अल्फा बाय 2 आता है और लोअर और अपर टेल में या वन टेल के अंदर अल्फा आता है। राइट टेल के साथ पॉजिटिव जेड अल्फा और लेफ्ट टेल के साथ या लोअर टेल के साथ नेगेटिव जी अल्फा। फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप जो थर्ड स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन बनाया है अगेंस्ट एक्स बार उसका सिंपल रिवर्स कर लें, ठीक। और फिफ्थ स्टेप के अंदर आप
उस जो मतलब रिवर्स आपने किया, दिस वन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अंडर गिवन मीन। देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप इसका 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 2 टेल का क्वेश्चन है। तो एच ए जो है मीन इज अनइक्वल टू 20, उसने कहा ये है कि सैंपल साइज हमने लिया है 200 का, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, और आपने टाइप 2 निकालना है, मतलब वी वांट टू कंप्यूट बीटा अगेंस्ट दीज मीन। देखिए ए पार्ट में मीन है 18 इज लेस देन 20, तो अब आप जब क्रिटिकल रीजन लेंगे तो z इज लेस देन बाय माइनस दी अल्फा बाय 2। जब बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो बी और सी दोनों सेम है, कि बी में आपका मीन है 22.5, सी में है 21, बोथ दीज वैल्यूज इज आर ग्रेटर देन 20। तो इस केस में जब आप क्रिटिकल रीजन स्टार्ट करेंगे तो वो z इज ग्रेटर देन बाय z अल्फा बाय 2 होगा। तो बस जो सी पार्ट है उसमें बी पार्ट का जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने मीन को चेंज कर देना है 21 से। तो आपकी जॉब ये है कि आप ना वैसे आपको काम करना चाहिए था, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज की क्लास में आप टाइप 2 एरर के रेलेवेंट प्रॉब्लम मुझसे करेंगे। ये टाइप 2 एरर ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये एग्जाम में टाइप 2 एरर का रेलेवेंट क्वेश्चन सेट होता है। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझसे ज़रूर कोई ना कोई क्यूरी जो हो वो शेयर करेंगे रिगार्डिंग टाइप 2 एरर। तो ओके, बहरहाल जैसे भी है, अब आप ये करें कि आज की क्लास, कल की जो क्लास है उसमें आप उससे पहले टाइप 2 एरर के प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक, एक करें सॉल्व, 2 करें, जितने आप कर सकते हैं। ये आपको टाइम मतलब लगेगा, छोटी छोटी इसके अंदर मतलब ना माइनर माइनर सी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट मतलब इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पाता, तो स्टूडेंट के लिए बड़ी बहुत सारी जगहों पे आपकी कंफ्यूजन होगी। आपको एक सॉल्व एग्जांपल तो वो है जो मैंने लास्ट टाइम करवाई थी आपको, उसके अलावा ये सॉल्व एग्जांपल अवेलेबल है बुक में। आई थिंक ये 1 टेल के अगेंस्ट, यही जो मैंने एग्जांपल अभी कोट की थी 120 की, इसके अगेंस्ट इसने इसको सॉल्व किया हुआ है। एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, बेहतर है कि आप पहले 4 ये मतलब फर्स्ट राइट दीज 5 स्टेप और देन कंप्यूट टाइप 2 एरर। ओके जी, next concept associated with beta is power. सर वो कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। अच्छा, just a minute. Okay, I have admitted a request of all students in a waiting room. सर जस्ट रिक्वेस्ट के सर ये वेटिंग रूम का खत्म कर दें, बाहर कभी कभी वो कनेक्शन की तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वो वेटिंग रूम में हम चले जाते हैं। Without waiting room? यस सर, मतलब अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो इजीली फिर कनेक्ट कर पाए। हाँ, वो फिर ये है कि जिस टाइम पे ये सेशन जनरेट किया जाता है ना जूम पे, उस टाइम पे उसकी ऑप्शन आती है सेटिंग की। अभी मैं देख लेता हूँ इस टाइम पे ऑप्शन है इसमें या नहीं। इसके 1-2 फायदे भी होते हैं हमें असल में। वेटिंग रूम का ना, स्टूडेंट्स को इन करते हैं ना, हम स्टूडेंट्स का नेम देख के इन करते हैं। 1 मिनट में अपनी सेटिंग देख लेता हूँ इसमें ऑप्शन है या नहीं। बल मैं साथ साथ ऐड करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे पास ना वेटिंग रूम से पहले एक नोटिफिकेशन सा आ जाता है, पता नहीं आपकी स्क्रीन पे विजिबल होता है या नहीं होता। मैंने स्क्रीन शेयर भी की होती है, तो मेरी स्क्रीन पे वो विजिबल हो रहा होता है कि समवन एंटरिंग इन द वेटिंग रूम। तो वो मैं उसको, फिर मुझे डायरेक्ट वेटिंग रूम में नहीं जाना पड़ता, उसको एडमिट की ऑप्शन आती है। ओके, यहाँ नहीं है ऑप्शन इस टाइम पे वेटिंग रूम की। दूसरा वेटिंग रूम का हमें थोड़ा एडवांटेज भी होता है। वेटिंग रूम हम इस वजह से एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द जूम सेशन हम उसको मार्क इसीलिए करते हैं, चेक इसीलिए करते हैं कि स्टूडेंट्स को देख के हम इन करेंगे।
Okay ji. Yes, now comes the concept of power. Yes, is the whiteboard is visible in front of you? Yes, sir. Section 9.7 के साथ ही 9.6 we have already discussed section 9.6 hypothesis testing and decision making. It is theoretical concept here. Okay, these two are the different things. Hypothesis testing and decision making are the two different things. Decision making जो होगी वो आप करेंगे अपने सारे circumstances को देखते हुए. ठीक है, 10 जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंक्लूजन है उसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो कंक्लूजन है वो बेस्ड अपॉन सैंपल है और सैंपल से आने वाले रिजल्ट्स कैन बी चेंज बाय सिलेक्टिंग अनदर सैंपल. मतलब सैंपल टू सैंपल जो कंक्लूजन है वो वेरी करते हैं हमेशा. इस वजह से वो मतलब 100% रिलायबल कंक्लूजन नहीं होते. And also controlling the type decision is based upon by controlling the type 1 and type 2. In section 9.7 we have discussed type 2 error which is noted by beta. अच्छा, आपको वॉइस का इशू तो नहीं है स्टूडेंट्स को? Anyone facing the voice issue or not? No, sir. No, sir. Okay. Except it's not. Except it's not. Basically, type 2 error is defined as wrongly accept. Wrongly accept means when it is true. Wrongly accept it's not when it's not is true. When it's not is true. This one is called type 2 error. Now define power. Power is the complement of type 1 error, type 2 error. Power is defined as 1 minus beta. 1 minus beta means probability of just 1 minute. Beta is probability of accepting H naught when it is false. When it is false. And power is defined as probability of reject H naught. इसका opposite हो जाएगा. वहाँ आप कह रहे थे accept H naught, तो यहाँ होगा reject H naught. Condition same रहेगी. Under same condition. Reject H naught when H naught is false. When H naught is false. This one is called power. पावर मीन पावर एरर नहीं है. अब देखें एक चीज फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये एरर नहीं है, करेक्ट डिसीजन है. मीन करेक्टली रिजेक्टिंग H naught.
ये एरर है आपके पास, दैट इज uncorrectly H0 is false and we accept. Uncorrectly or you may be called wrongly accepted H0. This one is called beta type 2 error. That is wrongly accepting H0. Accepting null hypothesis. H0. OC curve. Next topic is OC curve. Operating characteristics. Just we write OC curve. OC curve basically the graph of the powers with corresponding mean is called operating characteristics curve. This one provides the behavior of powers against the different values of mean. Different values of mean are plotted on this one. Mean plotted on x-axis and powers are plotted on y-axis. 1 minus beta powers, different values of power. सपोज देखिए कि आपके पास एक म्यू नॉट की वैल्यू होती है, जैसे एच नॉट हम हाइपोथेसिस बनाते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. तो जो नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है मीन के मे बी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीन. हम ये कह रहे हैं व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, सपोज आपका ये हाइपोथेसिस बना हुआ दिस वन एच नॉट टू टेल का हाइपोथेसिस है, म्यू is equal to mu naught and alternative hypothesis mu is unequal to mu naught. When we say that mu is unequal, h naught is false, it's mean value of the mean is not equal to mu naught. जब वो unequal है mu naught के तो या तो smaller है या फिर greater है. ये जितनी वैल्यूज होंगी mu naught से पहले all these values are less, मतलब all values of mu I are less than by mu naught, left of the mean. और ये जितनी values होंगी all these values of mean mu I are greater than by mu. जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवा रहा था आपको, तो ए पार्ट में 18 है और बी पार्ट में 22.5 और 21 है. तो लास्ट जो बी और सी पार्ट है वो है म्यू की वैल्यूज म्यू नॉट से ग्रेटर, फर्स्ट में लेस. तो अगर आप सपोज करें यहाँ पे आपके पास, तो ये एक सिंपल लाइन आ जाएगी म्यू नॉट के अगेंस्ट. जो म्यू नॉट से पहले बिहेवियर है वो सपोज इस फॉर्म में, और म्यू नॉट के बाद का जो बिहेवियर है हमारे पास उसकी पॉसिबल फॉर्म ये फॉर्म है. उसकी पॉसिबल फॉर्म ये भी बन सकती है, मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट हो और मिनिमम तक चला जाए, ये भी पावर कर्व बन सकती है. या फिर वो मिनिमम से स्टार्ट हो और जरा ये प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम 1 तक जाएगी. y एक्सिस है आपका, मैक्सिमम 1 तक जाएगा. मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीटा इज 1, ठीक, और स्टार्ट होगा ये मिनिमम से, प्रोबेबिलिटी है ना, तो इन बिटवीन 0 एंड 1 फॉल करेगी. सिमिलरली मीन से लेस वाली वैल्यू भी इस तरह हो सकती है कि स्टार्ट के मिनिमम से हो, पावर करके ये दो फॉर्म बन सकती हैं, दिस वन और दिस वन. ये तकरीबन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बनती है. मैं आपको बुक में प्लॉट किए हुए पावर कर्व, वहीं से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. दिस वन देखें, आपका हाइपोथेसिस था कि ऑन द एवरेज लाइफ ऑफ द बैटरीज is greater than by 120, then you
accept the law. If on the average life of the batteries are less than 120, then reject the lot. तो मीन ये उसने 120 से बिलो सारी वैल्यू ले ली है, लेस देन 120 मतलब सारी तो नहीं इसमें वर्ड यूज करेंगे, कुछ पॉसिबल वैल्यूज ली हैं which are all these values are less than 120, जैसे 119, 18, 17, 15, 14, 12. इसके अगेंस्ट z कंप्यूट किए, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 100 से जैसे मीन चेंज करता रहेगा ना, ए पार्ट में मीन को पुट करेगा 12, 112 ये आंसर आएगा, फिर पुट कर रहा है वो 114 ये आंसर आ रहा है. सिमिलरली लास्ट में उसने 119.99 which is also less than 120, तो ये आंसर आ रहा है. प्रोबेबिलिटी ये उसने डायरेक्ट जी टेबल यूज किया और ये बीटा फाइंड कर लिया. जी टेबल से ये प्रोबेबिलिटी है. आप जी टेबल पे जाएंगे 2.36 के लेफ्ट पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.0091. सिमिलरली -1.645 के लेफ्ट पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट होगी, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीजन बन रहा है ना, मतलब एक्सेप्टेंस रीजन ग्रेटर देन की फॉर्म में. तो आपने जब इस पॉइंट से ग्रेटर एरिया निकालेंगे तो टेबल तो आपको लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी देगा, वो 1 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा. सिमिलरली 2.36 के लेफ्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से माइनस होगी, तो देन योर आंसर इज 0.0091. मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन बाय दीज वैल्यूज. अब बीटा निकाल लिया हमने, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट, और बीटा से पावर निकाल सके. जस्ट सिंपल ऑल दीज वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1. 1 minus 0.0091 this, 1 minus 0.0869 this one. तो ये पावर आ गया. इन पावर्स को उसने प्लॉट किया है इन फिगर 9.9. देखें मीन था आपका 120, अब 120 से बिलो वो 112 तक आया है. अब अगर आप देखें तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, क्लोजेस्ट वैल्यू है, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम है 0.05, और जो जितनी मतलब फॉर अवे वैल्यू है फ्रॉम मीन, उसकी जो बीटा की प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.9909. तो ये आपकी जो पावर कर्व है वो इस तरह से बनी है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम. अगर ये मैक्सिमम टू मिनिमम होती तो फिर ये यूं बनती, ठीक, यहाँ से मैक्सिमम होती तो ये ऐसे आपके पास मतलब इसकी ऑपोजिट शेप बन जाती. सिमिलरली अगर आप पावर कर्व बनाना चाहें और मीन इज ग्रेटर देन बाय 120, तो वो आपके पास एक शेप यहाँ पर आ जाएगी पावर कर्व. आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे. आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन अवेलेबल है रिगार्डिंग द पावर एंड आल्सो ओसी कर्व. पावर कर्व या ओसी कर्व, पावर कर्व और ओसी कर्व प्रोवाइड द बिहेवियर ऑफ बीटा, बिहेवियर ऑफ 1 माइनस बीटा. पावर का बिहेवियर देता है, मीन को चेंज करने से पावर पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये आपको ओसी कर्व बताती है. Okay, now we are moving towards next topic, that is how to determine the sample size for a hypothesis test about the population mean which control both type 1 and type 2 error. Procedure इसका explain है, मैं इस procedure को अलग से write up कर देता हूँ. देखिए कि इस फिगर को आपने समझना है. सबसे पहले इस पर सपोज वी हैव हाइपोथेसिस मीन इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड मीन इज लेस देन बाय म्यू नॉट. पॉसिबली दो कंक्लूजन हो सकते हैं. व्हेन h नॉट इज ट्रू, एक ये हो सकता है. सेकंड ये हो सकता है कि h नॉट इज फॉल्स. अगर आपका h नॉट ट्रू है तो रिजेक्शन रीजन क्या होगा, दिस वन, mean is equal to mu naught. ये है sampling distribution of x bar when h naught is true, mean is equal to mu naught. तो आपका रिजेक्शन रीजन क्या बनेगा कि z, देखे ना अंडर ha, z is less than by minus z अल्फा, ये रिजेक्शन रीजन बनेगा. इस लोकेशन पे जो वैल्यू आएगी उसको उसने c से रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि when sampling distribution of x bar when x bar h naught is false. h नॉट के पास होने का मतलब है कि ha ट्रू है कि जो मीन की वैल्यू है वो लेस देन म्यू नॉट है. तो लेस देन म्यू नॉट कई पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी उसने म्यू ऑफ a रख ली. अब एक्सेप्टेंस रीजन किस साइड में बनेगा, राइट साइड में बनेगा एक्सेप्टेंस रीजन, दिस वन. व्हेन यू एक्सेप्ट h नॉट
and h naught is false. ये इसको डिफाइन करते हैं बीटा. When you reject h naught and h naught is true, this one is called alpha. तो यहाँ पे आपके पास अल्फा के अगेंस्ट रीजन बनेगा, यहाँ पे आपके पास बीटा के अगेंस्ट रीजन बनेगा. इसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ये सी की वैल्यू को पुट करते हैं. इसको मैं ना बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ. जो सेक्शन 9.8 है इसकी डेरिवेशन भी आपने सॉल्व करनी है कुछ. डिटरमाइन द सैंपल साइज. कल की क्लास के लिए आपके एक तो 9.7 के क्वेश्चन आपने करने. इसके अलावा जहाँ चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है ना, जॉन मोरेल की एग्जांपल है, स्टैटिस्टिक्स इन प्रैक्टिस का जो पेज है, उसकी समरी प्रेजेंट करनी है नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर. कल फ्राइडे है, कल की क्लास है, आल्सो ऑन इन सैटरडे क्लास. आपने जो है ना वो रैंडमली मैं छोड़ सकूंगा. आपकी तो यहाँ सेक्शन सी में स्ट्रेंथ कम है. मोस्ट वी हैव 23 पार्टिसिपेंट इन दिस मीटिंग. अच्छा, आपकी नॉर्मल बहुत ज्यादा हुई है सेक्शन सी के अंदर, लेकिन स्टूडेंट जो है ना ए और बी सेक्शन में मूव हुए. बाद में हम देखेंगे, उनको फिर एडजस्ट करेंगे. 50+ स्टूडेंट तो जाहिर है किसी क्लास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती फिजिकल में. ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर उनको मैं शिफ्ट करूंगा उनके रेलेवेंट सेक्शन में. सर रिपीट कर दें क्या क्या करना है? एक तो आपने बीटा के क्वेश्चन करने हैं ना, टाइप 2 एरर के. सेकेंडली प्रेजेंटेशन है आपकी जॉन मोरेल एंड कंपनी की, जो चैप्टर 9 का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रैक्टिस का पेज है. जो फर्स्ट पेज है ना आपका, उसको आपने प्रेजेंट करना है. Determining sample size n in case of hypothesis testing about mean. आप देखेंगे कि जो n की वैल्यू होगी ये कंट्रोल करेगी फॉर कंट्रोलिंग बोथ टाइप ऑफ एरर, अल्फा एंड बीटा. कंसीडर दिस हाइपोथेसिस h naught and ha, that is mean is greater सर than. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर. स्क्रीन शेयर नहीं. Yes, now यस सर विजिबल. visible है. देखिए, we have considered this hypothesis. आपका जो टॉपिक है वो ये है कि to determine the determining the sample size n in case of. We reject h naught h naught if आपका यहाँ क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, z is less than by minus z of alpha. यही बनेगा ना क्रिटिकल रीजन. लेस देन और इक्वल का साइन आया था, लेस देन और इक्वल माइनस z of alpha. इज इट क्लियर? यहाँ तक ये बात क्लियर है? सिंपल क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को यूज किया है. यस सर. यहाँ से देखिए, इसको ना मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x बार माइनस म्यू नॉट. ये बेसिकली रिजेक्शन रूल है व्हेन h नॉट इज ट्रू. इसकी अगर डायग्राम हम बनाएं, जो बुक में बनी हुई है डायग्राम, मैंने वैसे बना नहीं सकूंगा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इसकी डायग्राम बनाता हूँ. दिस वन इज ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x bar when h is equal to h naught is true, mean is equal to mu naught. So then we reject h naught if value of the z
is less than by z of alpha. ये जो वैल्यू है आपके पास, this value suppose called c, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, म्यू नॉट over sigma upon root of n, sigma upon root of n. This can be written as minus z of alpha. This term or this linear equation can be written as x bar is less than or equal to, देखिए म्यू नॉट राइट साइड पे ऐड हो जाएगा, जाके शिफ्ट होगा, म्यू नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, this term is multiplied by sigma by root of n minus z of alpha into sigma by root of n. मतलब अगर आपकी सैंपल साइज, सैंपल मीन की वैल्यू इस वैल्यू से रिजेक्ट लेस है, लेस देन और इक्वल है, तो देन वी रिजेक्ट h नॉट. तो ये दिस therefore this value is called c. then c जो आपके पास वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, जिससे बिलो अगर आपका नंबर आता है x बार का, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x बार इज लेस देन बाय c. ये बेसिकली वही स्टेप है जो हमने जनरली सॉल्व किया था, स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट सॉल्व किया था टाइप 2 एरर के अगेंस्ट. पहला स्टेप यही होता है, x बार इज लेस देन बाय c, c इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस z ऑफ अल्फा. इसको आप इक्वेशन 1 देते हैं, फर्स्ट वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय n. देखें एंड टाइप 2 एरर के अगेंस्ट c निकालते हैं, एक्सेप्ट h नॉट एंड वी एक्सेप्ट h नॉट, एक्सेप्ट h नॉट when h नॉट is false. When h नॉट is false. False. इसके अगेंस्ट जो c की वैल्यू है वो इस तरह से बन जाएगी. इसको मैं सारा सॉल्व नहीं करता, डायरेक्ट c की वैल्यू लिखता हूँ. देखिए जब हम कहते हैं कि यहाँ ना इसकी फिगर बनाते हैं, इसके साथ इसको रिलेट करेंगे. When we say that कि h नॉट is false, इस false का मतलब ये हुआ कि this one कि mu is h नॉट is false mean h a is true, कि mu is less than by mu of नॉट. तो वो जो लेस देन कोई भी वैल्यू है उसको मैं म्यू ऑफ ए कह देता हूँ. जैसे हम पहले पार्ट में लेस देन 20 से लेस हम वैल्यू दे रहे थे 18, या 120 से लेस हमने कई वैल्यू के अगेंस्ट अभी उसी का ड्रॉ की थी. तो यहाँ पे ना आपके पास बीटा बनेगा, यहाँ पे एंड पे, ठीक है. दिस वन इज z ऑफ बीटा, कि वी एक्सेप्ट h नॉट इफ बीटा, यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू आएगी बीटा, इस वैल्यू को मैं c कह देता हूँ. तो ये बेसिकली वही सेम, मतलब उतना ही रीजन होगा जितना ये. इसको ना बुक में मैं यहाँ कलर चेंज करके, बुक वाले ने इसके अगेंस्ट ना लाइंस ड्रॉ की, इसी लाइन को बुक ने एक्सटेंड किया, ऐसे बुलाया इसको, इस लाइन को इसको ज्वाइन किया है उसने विद दिस वन. दिस वन इसको इससे उसने ज्वाइन करती है. तो यहाँ देखें सी की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट रिप्लेस हो जाएगा म्यू ऑफ ए से, और ये राइट साइड पे आ रही है वैल्यू, ये पॉजिटिव है ना. आपका वहां पे जो वैल्यू थी जी की वो नेगेटिव थी, प्लस में जी ऑफ बीटा इनटू बाकी रिजल्ट सेम होगा, सिग्मा बाय रूट ऑफ एन. This one is the value of c when we accept h naught and h naught is true, and equation 1 represent the value of c when we reject h naught and h naught is false. तो फिर आपका अल्फा के साथ z डिफाइन होगा, और when we accept h naught मतलब wrongly accept h naught then z is defined
विद बीटा। इन दोनों को कंपेयर कर लें आप। कंपेयर 1 and 2. In both equation 1 and 2 provide the value of C. But the left sides are equal to C, then the right sides are also equal. Mu naught minus G of alpha. बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है Z को N को कंप्यूट करना और हम वन टेल के अगेंस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से आप अल्फा और बीटा यूज कर रहे हैं, अल्फा बाय 2 या बीटा बाय 2 यूज नहीं कर रहे। इक्वल टू mu of A, both compare both values of C. Mu of A plus Z of beta into sigma by root of n. This one कंपेयर करें इन दोनों को तो आपके पास suppose this term sigma by root of n is common from these two terms. This one is shifted from right side. Mu naught minus mu is shifted from left side, from right to left. And here sigma by root of n is common, then this term will Z of alpha plus Z of beta. This one. Sigma by root of n is common from these two terms. Sigma by root of n is common. After taking sigma by root of n as a common term from these two terms, we have left Z of alpha positive plus Z of beta. तो यहाँ से n की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू this term Z of alpha plus Z of beta। ये सिंपल मैथमेटिकली जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। सिग्मा और ये टर्म आपकी जो है वो यहाँ अंडर रूट ऑफ n की जगह पे डिवाइड हो जाएगी। mu naught minus mu a। To find or to get the value of n, simply square on both sides। Square on both sides। n is equal to Z of alpha plus Z of beta in इस पे स्क्वायर हो जाएगा and also sigma square। ये सारे टर्म का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं। डिवाइड बाय mu naught minus mu of a। देखिए आप अल्फा और बीटा को प्री डिफाइन करके आप n कंप्यूट कर सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, to determine the value of n which control both types of error alpha and beta। इसमें सिंपल सी चेंजिंग ये आएगी कि इन केस ऑफ टू टेल हाइपोथेसिस alpha is replaced by if in case of two tail hypothesis, case of two tail hypothesis, in case of two tail in case of two tail hypothesis,
n is equal to alpha is replaced by z alpha by 2, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया ना, इसको हम z, दिस वन इज z alpha by 2 plus z beta as it is. बीटा जो का टाइप 2 एरर, बीटा का मतलब डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, मतलब जो कि 2 टेल में आप क्रिटिकल रीजन में चेंज आएगा अगेंस्ट टाइप 1 एरर. बीटा इज रिटर्न सेम, ये बीटा z alpha by 2 into whole square sigma square, बाकी सारी टर्म एज इट इज ओवर, इसको म्यू नॉट माइनस म्यू ए लिखा है, म्यू ए माइनस म्यू नॉट लिखने में डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्क्वायर टर्म है. यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन अगर आप बीटा बाय 2 टेल हाइपोथेसिस अगर आपका होता है तो सबसे पहले आप क्रिटिकल रीजन यहाँ से स्टार्ट लेते कि z इज लेस देन है, तो यहाँ पे आप लेस देन बाय z अल्फा बाय 2, तो ये सारा क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे चलता, जस्ट सिंपली c इज डिफाइंड एज नॉट माइनस z अल्फा बाय 2, तो फाइनली आपके पास रिप्लेस हो जाती है वैल्यूज. ठीक है, अब हम बुक में आते हैं. बुक में आपको इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है. This one value of c mu naught minus this, अब उसको एक्सप्लेन किया हुआ नेक्स्ट पेज पे आप आए तो देखिए हमने ना ये इसको the lower panel of the figure 9.0 is the sampling distribution of x bar when the alternative hypothesis is true. मतलब जो बीटा के अगेंस्ट है लोअर पैनल, mu is equal to mu of a which is lesser by mu naught. The shaded region show the beta, इसकी बात कर रहा है लोअर पैनल की, this one. Yeah, in the shaded region show the beta, the probability of type 2 error that the decision maker will be exposed if the null hypothesis is accepted when x bar is greater than by c. तो देखिए ये acceptance region जिसका rejection region बना है x bar is less than by c, इसी तरीके से आपका acceptance region बनेगा x bar is greater than by c, लेकिन acceptance region बनेगा against type 2 error, mean when h naught is false, तो z जो है वो रिप्लेस हो जाएगा z ऑफ बीटा से और म्यू नॉट रिप्लेस हो जाएगा म्यू ए से. ठीक, द शेडेड रीजन शो द बीटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर दैट द डिसीजन मेकर विल बी एक्सपोज्ड इफ द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. देखिए ना, एरर क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 दैट डिसीजन मेकर विल एक्सपोज का मतलब है रॉन्ग, आप कंक्लूजन लें, रॉन्ग डिसीजन लें तो दिस वन यूज एज द टर्म एक्सपोज. If the null hypothesis is accepted, z value corresponding to the area of beta in the upper tail of the standard normal distribution, we will compute c using the following formula: c is equal to mu of a plus z of beta into sigma by root of n. Now we want to do is to select a value for the c. इसके लिए आप जस्ट इसको कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन करने के बाद इक्वेशन बनाई है, सिग्मा बाय रूट ऑफ n कॉमन लिया, ये फाइनल आंसर जो मैंने वहां पे आपको दिया थी, ये सारा स्टेप हमने वहां किया. So this one is your value of n against the by controlling z of alpha and z of beta. देखिए z of alpha को उसने डिफाइन किया है, z value providing an area in the upper tail of the standard normal distribution, z beta area that is upper tail of the beta के अगेंस्ट वैल्यू है, सिग्मा वही स्टैंडर्ड डिवीजन नॉट म्यू चार नॉन है. नीचे उसने एक नोट लिख दिया है कि इन टू टेल हाइपोथेसिस यूज अल्फा बाय 2. This formula is used to compute the value of n. ठीक है, रिलेशनशिप हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेते हैं. प्रॉब्लम 22. In question number 22, we have given hypothesis mu equal to 20 and mu is unequal to 20. देखिए हम डाटा पढ़ रहा हूँ. The population standard deviation is 10. Alpha is considered as 0.05. How large the sample should be taken? You want to find the value of n. If the researcher is willing to accept a 0.05 probability of making type 2 error, mean beta की value है. Point beta is also 0.05.
व्हेन द एक्चुअल, देखिए बीटा क्या होता है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, व्हेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स इट्स मीन एच ए इज ट्रू। एच ए आपको ये स्टेट कर रहा है कि मीन विच इज स्टेटेड दैट मीन इज अनइक्वल टू 20। तो अनइक्वल टू 20 तो कई वैल्यू हो सकती हैं, दैट इज 22। मीन की वैल्यू है वो म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 22। मैं अब इसमें बीटा एन कंप्यूट करके देता हूँ आपको। नाउ वी आर कंप्यूटिंग एन अगेंस्ट द डिफरेंट वैल्यूज, different against the given values. Problem 22. We have given that H naught is and HA, mean equal to 20 and mean is unequal to 20. Question standard deviation 10. Alpha and beta are both are equal to 0.5. चाहे तो सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं, 0.05 and mu of A last में जो गिवन है mu of A which is equal to 22। ये देखिए सामने आपका n का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता हूँ, देन n इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ये तो टू टेल के अगेंस्ट है। अच्छा अब आपका टू टेल के अगेंस्ट यूज होगा, क्योंकि ये टू टेल है ना, जी अल्फा बाय 2 दैट इज अल्फा बाय 2 होगा 0.025 प्लस डी बीटा, बीटा है हमारे पास 0.05 इसका स्क्वायर विथ सिग्मा स्क्वायर 10 स्क्वायर divided by mu naught, under h naught value of mean is 20 and mu a 22, 20 minus 22 and square of this term. Then n is equal to z 0.025 is 1.96। अच्छा ये नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि उसने मेंशन किया था कि ये अपर टेल की वैल्यू है। ऑलरेडी मेंशन दैट बोथ आर प्रोवाइडिंग द एरिया ऑफ z एज एन अपर टेल। 0.05 पे वैल्यू क्या होती है? आई थिंक 2.3। लेकिन आप z टेबल पे जाएं तो 0.05 मीन जिसके राइट पे लोकेट द वैल्यू ऑफ z as right of the z 5% data values and left of the z obviously 0.95 95% data value। तो 95% data values जो हैं 0.95 को सर्च करेंगे z टेबल में तो दिस नंबर इज 2.33। आप फिर भी इसको सर्च कर लें, मैं भी देख लेता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। स्क्वायर ये 1.65 आती है, 5% के अगेंस्ट जो वैल्यू है 1.65। दिस वैल्यू इज 1.65 100 99 के अगेंस्ट जो है ना वैल्यू लगती है आपकी
2.33 वैसे है ना 95 के अगेंस्ट 1.65 97 के अगेंस्ट 1.96 एक्सीड हो रही है वैल्यू 99 के अगेंस्ट 2.33 -2 एंड स्केयर इज 4 ये आंसर बताएं फाइनल ये 25 होगा ना 425 इनको ऐड करें स्केयर करें 25 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट बताएं मुझे इसका 326 sir 325.8 395.25 25 sir तो ये हमेशा राउंड अप होगा Sir. एटलीस्ट 395 396 डाटा वैल्यूज आर सेलेक्ट ये 395.1 भी होता तब भी इसको 396 लिखते हैं sir ये 325 है 325 25 अच्छा 25 है जी 325.8 में at least 326 data values are selected then your type 1 and type 2 error are both are equal to 0.5 तो ये जो 326 है सैंपल साइज इतना अगर आप सैंपल साइज रखेंगे तो आप वैल्यू ऑफ n है सॉरी जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर है वो अंडर कंट्रोल होंगे 5% इसके बाद इसमें कुछ रिलेशनशिप है वो आपने बुक से रीड कर लेने वो रिलेशनशिप इस तरह से है कि what are the effect on sample size by increasing the value of alpha and beta for example here I have shared this one page 424 देखिए एट द एंड ऑफ 424 ये तो उसने एक्सप्लेन किया है 493 और 49.3 n की वैल्यू आ गई 15 कहता है वी कैन मेक 3 ऑब्जर्वेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड सैंपल साइज फर्स्ट वन once the two of the three values are known the other one is can be computed ठीक इनमें से कोई भी दो नॉन होंगी तो थर्ड आप कंप्यूट कर लेंगे for a given level of significance alpha increasing the sample size will reduce the beta अगर आप n को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका बीटा मतलब अल्फा फिक्स कर लें n बढ़ाते जाएं बीटा कम होता जाएगा थर्ड वन for a given sample size decreasing alpha will increase the beta whereas increasing alpha will decrease the beta मतलब ऑपोजिट है ना अल्फा को डिक्रीज करेंगे बीटा इंक्रीज होगा n फिक्स कर दिया और अगर आप अल्फा को इंक्रीज करेंगे तो बीटा डिक्रीज होगा तो ये रिलेशनशिप बनते हैं आपके दिस वन इफ ये सेकंड केस को मैं लिख रहा हूं पहला केस तो बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास इफ यू हैव एनी टू वैल्यूज n अल्फा एंड बीटा then you can any two value then you can compute the third value मैं ये सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि if alpha against the fixed value of alpha is fixed then अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो by increasing the sample size जो बीटा की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी बीटा कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे यही क्वेश्चन है 326 पे बीटा आ रहा है 5% मैं इसको अगर 400 करूंगा तो बीटा की वैल्यू लेस देन 5% होगी अगर मैं इसको 450 करूंगा तो वो और स्मॉलर होती जाएगी सेकंड वन इज एंड थर्ड वन फॉर अ फिक्स सैंपल साइज if n is fixed
if n is fixed, then if you increase alpha, value of beta is decrease. n को हमने फिक्स कर दिया. और second option is if you decrease, vice versa. If you decrease alpha, beta is increase. जैसे ये केस है, n आप 326 ही रखें, अल्फा 5% है, बीटा भी 5% है. अल्फा को रिड्यूस करें तो बीटा ने इंक्रीज होना है. अल्फा को अगर आप 4% रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 5% से हायर होगी. अल्फा को इंक्रीज करें, अल्फा आप इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा 5% से हायर जाते हैं तो बीटा ने कम होते जाना. एन अगर आप चेंज नहीं करते, अगर अल्फा को फिक्स कर लेते हैं, एन को इंक्रीज करने से बीटा रिड्यूस होगा. इफ यू फिक्स द वैल्यू ऑफ एन, देन द रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अल्फा एंड बीटा. एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. चले हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन इसका एक और सॉल्व करते हैं हम अभी की क्लास में. लेकिन वी हैव लेफ्ट वन टॉपिक फ्रॉम सेक्शन 9.5, sorry 9.4, the relationship between, sorry, this one is discussed in section 9.3, the relationship between interval estimation and hypothesis testing. इसके लिए ये था, इसको हाईलाइट करके उसने लिखा हुआ है. सपोज यू हैव टू-tailed hypothesis, mean is equal to mu naught and mean is unequal to mu naught, and this one is the confidence interval about the mean, x bar plus minus, ये ना प्लस माइनस है, यहाँ मिसिंग है x, यहाँ ना ये मिस प्रिंटिंग है आपके बुक में. x bar plus minus z alpha by 2 into sigma by root of n. Okay. If the confidence interval contain the hypothesis, अगर ये जो इंटरवल है आपके पास, मतलब ये ना रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं अब तक. ठीक, फर्स्ट वन इज अंडर p वैल्यू अप्रोच. इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा देन रिजेक्ट इट नॉट. सेकंड वन इज अंडर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, मीन इफ z इज लेस देन by minus z alpha one tail, or z is greater than by z of alpha, or z is less than or greater than 2 z alpha by 2 with positive negative sign, then you can reject h naught. थर्ड ऑप्शन जो है h naught को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की वो ये है कि अगर ये जो अंडर h naught वैल्यू ऑफ मीन है mu naught, this one is called hypothesized value. If our interval contain this value, then we cannot reject h naught. अगर and otherwise we can reject h naught. फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सिंपल सा केस है. ये आपके पास एक 295 हाइपोथेसाइज वैल्यू है 295. आपने 90% कॉन्फिडेंट इंटरवल निकाला, वो उसका आंसर आ रहा है 294 to 300. अब अगर आप देखिए कि इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करनी है अंडर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 295, this interval 294 to 300, 295 is belong to this interval. Yeah, this interval contain the value of 295. Is it true? Response करें मुझे. इस इंटरवल में 295 आ रहा है ना? Yes sir. तो we cannot reject h naught. ठीक, तो अब आप h naught, अब आपका कंक्लूजन ये होगा as our 95% confidence interval contain this value, so then this value cannot be rejected, otherwise you can reject h naught. अगर सपोज करें आपके पास ये वैल्यू होती 293, तो 293 तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, या 294 भी होती, तो ये जो कि स्टार्ट हो रहा है 294.3 से, then you can reject h naught. या 309 से अबव कोई वैल्यू होती, 302 होती, 305 होती, तो then our confidence interval does not contain this value, then you can reject h naught. इस केस में देखो उसने आंसर ये लिखा है, the finding enable the quality control manager to conclude that the 95% confident that the mean distance from the population of a golf ball is between this one 294 to 309 yards, because the hypothesized value, ये जो value है 295, hypothesized value for the population means 295 is in the interval, is
in this interval, the hypothesis testing conclusion is the null hypothesis cannot be rejected. ये आपका conclusion है. मतलब if our hypothesized value is in the interval or is fall in the interval or belongs to the interval, then we cannot reject H naught. This is another criteria for acceptance and rejection of null hypothesis. अच्छा, इसमें p वैल्यू के ऊपर ये डिस्कशन है, ये इम्पोर्टेंट है. देखिए, we have shown that the p value, the smaller p value जितनी smaller होगी रिजेक्शन के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे. The smaller p value, the greater the evidence that against H naught, and more the evidence in the favor of alternative hypothesis. Here are the some guidelines statistician suggest for interpreting the small p value. For example, if p value is less than by 1, we have overwhelming evidence. देखिए ना, हमारा criteria क्या था कि if p value is less than alpha, then we can reject H naught. तो अगर p value 1% से भी left है, तो we have overwhelming evidence to conclude H naught is true. अगर p वैल्यू 1 से 5% तक है, उसके लिए उसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस का वर्ड लिखा है, और 5 to 10% है तो वीक एविडेंस, और अगर 10% से हायर है तो इट्स मीन वी हैव इनसफिशिएंट और नो एविडेंस टू कंक्लूड H naught is true. इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर. एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू द सैंपल साइज n इन केस ऑफ अल्फा एंड बीटा. ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57. बाकी क्वेश्चन में तो बहुत कैटेगोरिकली म्यू ए म्यू नॉट गिवन है, इसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. करेंगे. एक्सक्यूज मी सर, यस, ये सारे टॉपिक्स जो 9 चैप्टर के सारे इंक्लूड है, कोई भी स्किप नहीं है? हाँ, नहीं स्किप कोई भी नहीं. 9.4 9.5 दोनों इंक्लूड है? 70. ओके, थैंक यू. 9.6 एक ऐसा टॉपिक है जिसके रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, वो जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन इंक्लूडेड वो भी है जो आज हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग. Ahmed Usman, are you here? Yes, Ahmed Usman. Ahmed, read करें आप. Open your mic and read problem 57. Yes, Ahmed. Yes, sir. थोड़ा माइक्रोफोन का इशू था सर. Loudly पढ़ें. 57 सर. Loudly, clearly पढ़ें ताकि students understand. A special industrial battery must have a life of at least 400 hours. The hypothesis test is to be conducted with a 0.02 level of significance. If the batteries from a particular production run have an actual mean use life of 385 hours, the production manager wants a sampling procedure that only 10% of the time would show erroneously that the batch is acceptable. What sample size is recommended for the hypothesis test? Use 30 hours as an estimate of the population standard deviation. Explain करें. Also explain the statement. Okay, सर एक इंडस्ट्रियल बैटरी है जिसकी लाइफ एटलीस्ट 400 आवर्स होनी चाहिए. अब हाइपोथेसिस टेस्ट कंडक्ट करने हैं 0.02 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो मतलब अल्फा 0.02 सिग्निफिकेंस होगा. अब एक इफ बैटरीज फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्शन रन हैव एन एक्चुअल मीन ऑफ 385 आवर्स. अब एक हमने एक प्रोडक्शन रन किया, उसकी बैटरीज की जो मीन लाइफ थी वो 385 आवर्स थी, मतलब 400 आवर्स से कम थी वो. 385. द प्रोडक्ट
G 385 hours mean life. The production manager wants a sampling procedure that only 10% of the time will show erroneously that the batch is acceptable. तो इस सेंटेंस में मुझे खुद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें ये सैंपल साइज पूछ रहा है और 30 आवर्स एस्टिमेट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दी हुई है। ये 10% क्या चीज है? सो ये सेंटेंस मुझे खुद इतना समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा पढ़े ना इस सेंटेंस को। The production manager wants a sampling procedure that only 10% of the time would show erroneously that a batch is acceptable. What is meaning of this? 10% क्या है? So ये probability कह सकते हैं इसको? Probability कह सकते हैं इसको? Probability है? Error की probability. Type 2 error की probability. The production manager wants a sampling procedure that only 10%, मतलब वो जो sampling procedure चाह रहा है जिसके against आपने n निकालना है, that 10% of the time would show erroneously that batch is acceptable. मतलब erroneously mean wrongly. अच्छा. ठीक. That 10% of the time would show erroneously that batch is acceptable. Mean we accept it not when it's not is wrong. Mean erroneously accepted null hypothesis. The production manager wants a sampling procedure that only 10% of the time. मतलब production manager already fixed the type 2 error for sampling procedure, which is equal to 10%. This one is a beta. बाकी तो ये मेरे ख्याल है सबको एक्सप्लेन हो गया, वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्पेशल इंडस्ट्रियल बैटरी मस्ट हैव अ लाइफ फॉर एटलीस्ट 400 आवर्स। ये स्टैंडर्ड उसने दे दिया है कि लाइफ ऑफ द बैटरी एटलीस्ट 400 आवर होनी चाहिए। तो अगर आपका हाइपोथेसिस टेस्ट इज टू कंडक्टेड, एच नॉट बन जाएगा एटलीस्ट 400 आवर, एच ए बनेगा लेस देन 400 आवर। ठीक, hypothesis is to be conducted with this one is a level of significance, that is alpha. If the batteries from a particular production run have an actual mean life of 385, देखिए ना HA बन रहा है, mean is less than 400, तो 400 से run less, the multiple possible values हैं, we have considered the actual mean as a 385. This one is a mu A. The production manager want a sampling procedure that only 10% of the time would show erroneously. Manager want us would show erroneously that the batch is acceptable. So manager already fixed the type 2 error, that is erroneously acceptance of H naught. H naught का मतलब है acceptable mean batch is acceptable. अगर life of the battery is at least 400 hours है, then we accept the H naught, or we will accept the H naught. Otherwise we can or we will not accept the H naught. This one 400 hours. And production manager already decide that 10% of the time would erroneously acceptance of batch. Mean beta is considered as, beta mean accept H naught when H naught is false. Mean wrongly, incorrectly, erroneously. These are the similar word synonyms. Mean wrongly, erroneously, incorrectly. There are 10% chances that we will accept H naught when H naught is false. This term is considered as a beta. So our objective is to recommend the sample size, use 30 as a estimate. Basic इसमें अगर आप statement को सही तरीके से understand कर लेंगे और statement से जो relevant material है वो correctly predict कर लेंगे, then you can easily you could easily solve the question. For example, problem number 57. आपने इसको सॉल्व खुद करना है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ डाटा लिख के दे देता हूँ।
57. H naught is that batteries are accepted if life of the battery should be at least, ये at least की वजह at least का ये साइन होता है greater than or equal, या probability में भी आपको पढ़ाया जाता है कि at least में मिनिमम इतना होना चाहिए, मतलब ये इंक्लूडेड है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए, at least 400 hours life of the batteries, at least 400 hours, and its alternative hypothesis HA, which is equal to mean is less than 400 hours. 400 hours. Alpha is considered as 0.02 level of significance. Mu of A under alternate again less than 400. We consider mu of A as 385. 385. And beta type 2 error is that production manager allowed 10% of the time erroneously accepted the lot. Beta is considered as 10%, that is 1.1. And sigma, population standard deviation, is considered as 30. Yes. आपने इसको सॉल्व करके अभी सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। ये मैं इनका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एन इज, ये देखिए 2 टेल है, तो z इज रिटन कंसीडर एज z अल्फा बाय 2, सॉरी 1 टेल है, 1 टेल है, z ऑफ अल्फा प्लस z ऑफ बीटा स्क्वायर into sigma square divided by mu naught, which is mu naught is 400 minus mu a 385 square. Substitute the given values into the n और मुझे आप फाइनल आंसर बताएंगे n का क्या है। Okay, solve this problem. ये सॉल्व करें, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा रैंडमली। Find the value of z alpha and z beta from z table. Student who have solved this question, raise your hand. Those students who have solved this question, raise your hand. Just simply raise your hand, not write up the answer or you can use the calculator from, you can also use the calculator from the system.
ये सॉल्व करें, बाकी स्टूडेंट भी सॉल्व करें। Four students. Let's solve this question, please. Hasnain Abbas. Hasnain. What is your answer? Yes, Hasnain. Tashmin Zafar. Yes, Shiraz Khokur, क्या आंसर आया? What is your answer, Shiraz? वैल्यू ऑफ n क्या है आपकी? रिपीट करें, क्या वैल्यू है आपकी? 32 सर। शिराज खोकर। यस शिराज। ओके वकास मलिक। वकास आंसर क्या है? सर 63.075 63.075। बाकी स्टूडेंट के पास भी यही आंसर है। नो सर हमारा 45 आया है। 45 सर मैंने 44.35 सर मैंने सिग्मा 30 लिया है, मुझे सिग्मा 30 लग रहा था पहले। सिग्मा 30 है ना? 30 है तो सर फिर ये राइट है। 64। यस 45 कितने स्टूडेंट्स हैं? इनका आंसर 45 में रिप्लाई करो। यस आंसर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज 45? Yes, sir. वर्बली रिप्लाई करें। Yes, sir. Almost 44.35. Yes, sir. 45. चले आपने इसको वेरीफाई कर लेना इस रिजल्ट को, ठीक? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर ही 45 है, इसको वेरीफाई कर लेंगे सर। ओके जी, ब्रेक कर लें अभी। सर आंसर 44.35 आया हुआ है। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे ना, राउंड ऑफ कर लेंगे। सैंपल साइज है ना, सही है सर। राउंड ऑफ करके 45 हो जाएगा। सर 15 मिनट की ब्रेक करेंगे। 15 मिनट्स की ब्रेक करेंगे। 15 मिनट सही है सर। 11 तक ठीक है सर। ठीक है, we will meet again at 11 o'clock. You can leave now. Sure, sir.